क्रिकेट दी ABC मैं सारी संजीव सर तो सीखे। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ मूव हो जा? फाइनल प्राइज लगती है बिड, उस पूरी मनी मिलती है और उन्होंने बोला कि वेल बोल्ड। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं कि हो सकता है हमसे कोई गलती हो रही हो। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਮੇਰਠ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰਠ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਸਾਲ? ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਠ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਠ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 19 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਕੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਰਕਪੁਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਗਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਗਲੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਲੂ ਗੱਟਾ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਾਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਰਵਨੀਤ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਚਿੱਟੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੀਗੀ, ਡੈਡੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੈਂਟ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ। ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ABC ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਸਵਿਚ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੁਆਇਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾ, ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ? 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਲਿਆ ਮੈਂ ਅੰਡਰ 16 2011-12 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ PCA ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਏ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 ਮੈਚ ਮਾੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਲੋ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਮੈਂ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਢ ਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟਰਾਇਲਸ ਕੱਢ ਜੂੰਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਨਾ IPL ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਜਸਟ ਫॉर द नेशनल ऑडियंस थोड़ी जी हिंदी रख ली। हाँ हाँ जी, कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है भाजी, ये बताओ कि जब वो ऑक्शन हुआ आपका, एंट्री हुई IPL में, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फीलिंग कैसी थी? लाइव ऑक्शन देख रहे थे आप उस टाइम या बाद में किसी पता चला आपको? नहीं नहीं जी, ਅਸੀਂ हम लोग देख रहे थे। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਨ ਆਫ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਨ ਆਫ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ कर रहा हूं। नहीं मैं बोल लेना ही, बथेरे हैं ना बोलिए। हम लोग उस समय थे जयपुर में, ओके, कॉल्सी के नायडू ट्रॉफी चल रही थी, तो हमारा मैच था राजस्थान से चल रहा था, 4 डे मैच होता है, 4 डे मैच था, तो हम लोगों ने राजस्थान को आउटराइड हरा दिया था। टेस्ट क्रिकेट में आउटराइड होता है कि एक टीम एक बार ही बैटिंग करती है और दूसरी टीम ऑल आउट हो जाती है 2 बार, वो बोनस विद आउटराइड हरा दिया था हमने उनको। तो उसके बाद मैच सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ, 12 बजे तक हमने उनको ऑल आउट कर दिया, 2 बजे ऑक्शन स्टार्ट होनी थी। तो हम लोग सारे एक्साइटेड थे कि ऑक्शन में नाम आएगा, इतनी एक्साइटमेंट थी कि नाम आएगा टीवी पे। ओके, मेरा रूम पार्टनर था अर्शदीप, और हम दोनों यही सी चीज़ के लिए एक्साइटेड थे कि भी देखते हैं, क्योंकि हमने ट्रायल दिए थे पंजाब टीम के लिए, उन्होंने हमको ऑक्शन से पहले ट्रायल्स होते हैं हर टीम के, तो उन्होंने हमको कॉल, मैंने दो टीम के ट्रायल दिए थे उस साल, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स 11 पंजाब। पर जस्ट टू बेट इंक्लूड यू, थोड़ा लग रहा था उस टाइम कि आपने चलो राजस्थान और पंजाब के लिए दिया है, बट मन में लग रहा था कि यार चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, क्योंकि बड़ी टीम है काफी, कहा जाता है उनको, तो उसमें आ जाना, ऐसा था दिमाग में या नहीं? नहीं ऐसे, अब उस समय ऐसा दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि उससे पहले कभी मैं आपको बता रहा हूँ 2018 में ये प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू की, तो उससे पहले ये था भी कोई जानता ही नहीं है तो कैसे लेंगे टीम में, है नहीं। तो जिनके ट्रायल दिए ये था कि हाँ भी वो तो मुझे पहचानते हैं, और वो जो कॉल्सी के ट्रॉफी थी उसमें अच्छा परफॉर्म हो रहा था। तो उस शाम को 2 बजे शुरू होते हैं ऑक्शंस, तो पहले जितने भी सीनियर्स प्लेयर थे, इंटरनेशनल प्लेयर थे, उन सब का ऑक्शन हुआ। तो मेरे को भी था कभी नाम आएगा, पता नहीं कब आएगा, ये नहीं पता था। तो अर्शदीप की सिलेक्शन हो जाती 5 साढ़े 5 बजे। तो हमारी टीम के जितने भी प्लेयर्स थे वो हमारे रूम में आके नीचे बैठ गए थे, 2 सेपरेट बेड थे हमारे, तो कुछ लोग बेड पे बैठे थे, तो मैं भी ना नीचे बैठ गया था, मैं भी नीचे बैठ गया, दोनों बेड के बीच में मैं पीछे बैठ गया। तो मैंने अपने फ्रेंड से, निखिल चौधरी था मेरा फ्रेंड, तो मैंने उसको बोला कि यार अगर मेरा नाम निकल भी जाएगा ना, कई बार क्या होता है कि वो स्किप कर देते हैं, जिस प्लेयर को नहीं लेना तो वो नाम स्किप कर देते हैं। मैंने बोला अगर मेरा नाम निकल भी गया तो तूने ये नहीं कहना भी मेरे को बुरा लगेगा, मेरे को बताना है कि हाँ निकल गया। तो वो नहीं तेरा है, और नेक्स्ट ही है तू, नेक्स्ट ही है। तो जैसे उसने बोला नेक्स्ट ही है, तो वो मैंने देखा तो नेक्स्ट स्क्रीन पे नाम आ गया। तो मैं तो खुश था, मैं स्क्रीन पर नर्वस भी था, तो मेरा स्क्रीन पे ही ध्यान था। तो जैसे नीचे लिखा है ना करंट बिड, तो मैं कहा यार शुक्र है ले लिया। तो वो उसके बाद तो बस कह लो कि वो पाकिस्तान का आपने सुना होगा, जज्बात बदल गए, वो सब वक्त बदल गया उसके बाद। मतलब इतनी एक्साइटमेंट और खुशी थी कि यार अभी रिप्ले चलने लग जाते हैं बंदे के माइंड में। उस समय 5-10 मिनट तो जश्न चला, ये दोस्तों ने हल्ला किया, इतना हमने एंजॉय किया। उसके बाद फिर वो जो उसके बाद मैंने ना रात को सोने से पहले रिप्ले चलते माइंड में, यार 1 साल पहले सोचा नहीं था कुछ ऐसा होगा। तो फिर वही चीज़ दिमाग में आई, तो वो चीज़ एक कह लो कि उसको लेसन, एक मेमोरी ऐसी माइंड में बनाई कि यार यू नेवर नो कल को क्या हो जाना है ना। मैंने सोचा था कभी कि उन लोगों से, जिन लोगों को टीवी में देखता हूँ उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूँगा, है ना, उनके साथ बैठूँगा। तो ये एक नॉर्मल लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है।
तो मैं कभी सोचा नहीं था वो चीज़ जब हुई ना, तो सोचा मैंने यार भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, जब चलते रहना चाहिए। प्रोसेस क्या होता है जब आपको टीम ने खरीद लिया, ठीक है, जितना मर्जी प्राइस में खरीदा है, तो क्या जैसे अभी हमने देखा रिसेंटली जैसे मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में लिया, क्या वो पूरी मनी मिलती है या कुछ कट कटा के, कैसे होता है उसका बाइफरकेशन? नहीं जी, जितने भी फाइनल प्राइस लगती है बिड, उस पूरी मनी मिलती है, और बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स होता है, मेरे को फॉरेन प्लेयर के बारे में नहीं पता, क्योंकि वहाँ मेरे को इंडियन के बारे में पता, जो भी होता है, जितना भी टैक्स कटना है वो सब कट के, तो फिर वो जो बाकी मनी होती है वो प्लेयर को मिलती है। अच्छा, एग्जैक्टली मिलती है, ऐसा नहीं कि इतनी इतनी करके मिलेगी, इकट्ठी मिलती है? नहीं, ऐसे नहीं आती, इंस्टॉलमेंट्स में ही आती है, इतना अमाउंट इकट्ठा, मतलब हमारी फ्रेंचाइजी में तो हम इंस्टॉलमेंट्स में ही आती है। ओके ओके ओके। वो चीज़ अच्छी भी है जी, हम तो खर्च नहीं भी होता, उसी हिसाब से खर्च होते अपने हिसाब से खर्चा बढ़ाएगा बंदा, लेकिन फिर बीच में देखते हैं एड्स बहुत करते हैं प्लेयर्स जी। वो अलग से होती है या वो इंक्लूडेड होता है उसमें? ड्यूरिंग आईपीएल जितने भी एड्स होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है कि वो आपको फ्रेंचाइजी के लिए करने पड़ेंगे। हाँ, अगर और उसके आईपीएल के बाद बहुत एड्स आते हैं, तो वो सब पेड होते हैं। तो मतलब अगर मान लो आपको टीम ने लिया 50 लाख में, तो 50 लाख में ही वो इंक्लूडेड है जी। ads? मोस्टली क्या होता है कि लाइमलाइट में होते हैं जो प्लेयर, उनको एड्स देते हैं, क्योंकि प्लेयर को जितनी भी ऑडियंस है वो देखना भी उन्हीं प्लेयरों को जाती है जो लाइमलाइट में होते हैं, तो वो उन्हीं प्लेयरों को लेते हैं ज़्यादा। Okay, and now let's talk about the biggest achievement, the biggest day of your life. वो जो कोहली का विकेट लिया, वो भी किल्लियां उड़ा दी, मैक्सवेल, फिर एबीडी भी, वो दिन कैसा था? वो रात मैं कहूँगा बेसिकली। कह लो कि ना, मैं उससे पहले एक भी मैच नहीं खेला था उस सीज़न। वो हमारा 7th मैच था अहमदाबाद में, तो उससे पहले मैं थोड़ा ये भी था, मैं थोड़ा कह लो कि सैड था यार, मैच ही नहीं मिल रहा है, कैसे होगा। तो क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन थी, थोड़ा हर प्लेयर को ये कहीं ना कहीं माइंड में, जितना मर्जी पॉजिटिव कह लो कि मेरा माइंड पॉजिटिव है, बट जब आदमी अकेला बैठा होता है वो खुद से बातें करता है। हाँ, तो वो चीज़ें वो मेरे माइंड में भी चलती थी यार, जब मैं रूम में जाता था यार, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर वही चीज़ें मैंने आपको बताई कि सोचता था कि यार कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक आ गए, क्या हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। तो वहाँ से जब वो मैच शुरू होना था, प्लेइंग सुनाई, तो मेरा नाम था प्लेइंग में, खुशी थी। पर मैं उससे पहले भी आईपीएल के मैच खेला था, तो उससे पहले मतलब खेलता था ना, तो थोड़ा बर्डन, प्रेशर बना लेता था अपने ऊपर। फिर मैं मैच से पहले मैं वॉशरूम में गया, तो मैंने रिलैक्स किया, मैं ये मैच ना मैंने इंजॉय करना है, देखी जाएगी क्या होता है क्या नहीं, अगला मैच मिले ना मिले, कोई मतलब अपने आप पे प्रेशर नहीं लेना कि हो सकता है मैं कुछ बहुत अच्छा कर जाऊं। तो क्रिस गेल बैठे थे, तो वो रेड स्पाइक्स पहन रहे थे, रेडी हो रहे थे, बैटिंग थी हमारी पहले। तो क्रिस गेल ने मेरे को पूछा कि हम लोगों का ना एक स्लैंग चलता है, जब्स बोलते थे हम 5 लोग, हम जब्स बोल। हाँ, तो क्रिस गेल बोला मेरे को, जब्स आर यू प्लेइंग? मैं यस बॉस आई एम प्लेइंग। ओह गुड लक। मैं कहना आर यू नर्वस? मैं कहा नो बॉस, इट्स अ इजी जॉब फॉर मी, आई विल ओनली टुक 3 बैट्समैन ऑफ आरसीबी के, विराट कोहली, मैक्सवेल एंड एबी डिविलियर। मैनिफेस्ट कर लिया था। तो मैं जैसे ही ये चीज़ हुई ना, तो मैंने जब मैं उसको आउट किया एबी डिविलियर को, मैं थर्ड मैन पे खड़ते थे क्रिस गेल, मैं भागा थर्ड मैन पे गया, मैंने बॉस आई टोल्ड यू, तो एक्साइटमेंट थी। हाँ, तो वैसे ही मतलब कह लो कि, और ये मेरे साथ वैसे नॉर्मल भी होता है कई बार, कि मेरे को ना मेरे दोस्त भी बोलते हैं यार इसके मुंह से ना, अगर मैं होता है कई बार मजाक में नहीं हम बोल देते बुरा, कहते इसके मुंह से कुछ ना निकलवा लेना, वो सच हो जाता है। वो तो वही चीज़, तो मैं ना फिर वही चीज़ मैंने सोचा, तो मैंने माइंड में वो चीज़ बनाई कि यार मैं अच्छा बोलूँगा, हो ना हो होगा ही होगा, ऐसा अगर मैं वो चीज़ मैनिफेस्ट करूँगा तो वो होएगी, चाहे टाइम जितना मर्जी लग जाए। तो वो चीज़ मैंने, तो वो उसके बाद वो विकेट मिले, और कभी उससे पहले तो आज तक कभी बात भी नहीं की थी विराट कोहली से। उसके बाद जब प्रेजेंटेशन एरिया के लिए जा रहे थे, उन्होंने खुद रुक के बुलाया और उन्होंने बोला कि वेल बोल्ड, तो वो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। मतलब मनी सक्सेस ये चीज़ अलग है, बट इतने बड़े प्लेयर ने जब आपको बुलाया, तो वही चीज़ अभी भी कभी आंखें बंद करके सोचता हूँ, वो रिप्ले आता है माइंड में कि वो सामने से आ रहे हैं और हाथ मिलाया और बोला कि वेल बोल्ड, वेरी वेल। और क्या बात हुई थी, मतलब उसके अलावा कुछ टिप्स दिए उन्होंने, आपसे बातें करी?
उसके बाद हम उस टाइम तो इतनी ही बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी जाना था और मैंने भी आगे प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। लेकिन उसके बाद मैं इंडियन टीम के साथ था नेट बॉलर, तब मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने ये भी बोला था कि आगे जितना फ्यूचर बहुत बड़ा है, तो और हमेशा और अच्छा करने की कोशिश करनी है। कभी भी ऐसे नहीं करना है कि आप एक ही चीज़ पे स्टक करो। मैं अगर इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, मैं उसी की मेहनत कर रहा हूँ, उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो आप ऑलरेडी अच्छे हो। तो आप जिन चीज़ों में आपको लगता है कि हाँ मैं इनमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उन्हीं चीज़ों पे काम करना है। तो हाँ, ऐसे ही एक अच्छा प्लेयर बना जाएगा और बाकी प्लेयरों से अलग दिखोगे। वो एज अ सीनियर इतनी अच्छी उन्होंने गाइडेंस दी। और इवन उसके बाद नेक्स्ट आईपीएल में तो मैं थोड़ा नेक्स्ट आईपीएल में मेरे को मैच कम मिले। मैं पहले 2 मैच खेला, उसके बाद मेरे को बाहर बिठा दिया, मतलब तो फिर मैं सैड था। मैं कहा यार मैं बाहर नहीं बैठता, एक मौका और मिल जाता है। अपने आप से थोड़ा निराश चल रहा था। तो हमारी कोविड के टाइम प्रैक्टिस इकट्ठे होती थी, क्योंकि बबल एरिया था, हम बाहर नहीं जा सकते। तो हमारा नेक्स्ट मैच था आरसीबी से। तो मैं बैटिंग करके मैं आ रहा था वापस और पाजी जा रहे थे बस में। तो मैंने पाजी को बोला, मैं पाजी मुझे ना आपसे एक बात करनी है। तो कहते हाँ ठीक है, तो पैड वगैरह पहन उतार के आ जा। तो मैं पाजी के पास गया, तो मैंने उनसे यही डिस्कस किया कि पाजी भी मेरे को मैच कम मिल रहे हैं, मैं ये मेरे को। तो वो बॉम्बे में थे हमारे मैच। तो बॉम्बे में क्या है, बॉम्बे में स्पिनर्स के लिए थोड़ी कम हेल्प है, विकेट्स बहुत ट्रू विकेट्स हैं, बैटिंग के लिए बहुत अच्छे विकेट। तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि तूने कभी हिम्मत नहीं हारनी, अभी अगर तू यही सोच के बैठ जाएगा ना मेरे को मैच नहीं मिलना, तो जब तेरे को मैच मिलेगा तो वो सडनली मिलेगा, तो वो चीज़ तू अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। अभी मैंने खेला तो हमेशा ऑन टोज रहना, यू नेवर नो कौन से मैच में आपको मौका मिल जाए। तो वेरी नेक्स्ट मैच में खेला, तो वो आरसीबी के साथ ही था। तो जैसे ही मैच खत्म हुआ, अच्छा परफॉर्म हुआ उसमें, तो मैक्सवेल को आउट किया। और फिर मैच के बाद मेरी इंस्टाग्राम पे फोटो भी है, हम पाजी मेरे पास आए और पाजी ने मेरे को बोला कि क्या बोला तेरे को, हो गया ना सब कुछ। तो कहते इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी गेम पे फोकस करो और अपने जोन में रहो। वो चीज़ें कि वो और कैमरे पे देख के, अपना टीवी में तो देख के हम लोग सीखते ही हैं, बैटिंग जैसी करते हैं वो, बट वो जो लाइफस्टाइल है और अपने आप को इतना, आपको भी पता है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं है, उनको दुनिया कितना तंग करती है। जब कभी टाइम पीरियड ऐसा चल रहा होता है कि नहीं लगती बल्ले पे बॉल, बड़े बड़े प्लेयरों के नहीं लगती। तो वो चीज़ें उन्होंने अपने आप को उस जोन में कैसे संभाला होगा, तो वही चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। कभी ब्रेकफास्ट में भी उनके साथ बैठे तो यही चीज़ें, तो वो मेरी लाइफ में उन्होंने, मतलब उनका एक विकेट बहुत चेंज लाया। तो मैं तो वही बोलूँगा कि मेरी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट ही वही है। लेकिन आईपीएल में जब खेलते हैं बंदे, ऑफ कोर्स कोहली से बात करना चाहते हैं, विराट कोहली से, बट एक और बंदा है जिससे हर यंगस्टर बात करना चाहता है, वो है थाला। हाँ जी, हाँ जी। MS धोनी, उनसे बात हुई कभी आपकी? हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे किस तरह की बातें होती है? जैसे हम हमेशा देखते हैं टीवी में ना, पोस्ट प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम यंगस्टर उनकी तरफ भाग रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तो ऐसी क्या बात हो रही थी? कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स होते हैं या मैच के बारे में? आपको पता है कि उनको तो उनका नाम ही ऐसा चलता है, कैप्टन कूल बोलते हैं दुनियावी। वो कूल रहते हैं, इतनी प्रेशर सिचुएशन में भी कूल रहते हैं। तो वो मोस्टली तो लड़के वही पूछने जाते हैं कि भी जो प्रेशर सिचुएशन है, क्योंकि ना अब हम लोग नॉर्मल बैठे हैं, पर जब हमारे पे प्रेशर होगा तो हमारी हार्ट बीट इंटू 2 इंटू 3 हो जाती है आदमी। तो जब आपकी हार्ट बीट फास्ट है तो आपके पास सोचने का वक्त नहीं होता है, आप ऑप्शंस होते हैं तो आप वो ऑप्शंस की तरफ देखोगे ही नहीं, आपका रिएक्शन होगा, इंस्टेंट रिएक्शन होगा जो भी होगा। तो वो चीज़ मोस्टली जो जितने भी यंगस्टर हैं वो चीज़ें पूछते हैं। बट जब मैं मिला था तो मैंने उनसे यही पूछा था कि जैसे डेथ ओवर्स में बैटिंग आती है तो क्या सोचना है, माइंड सेट कैसा रखना है। तो वो चीज़ों की बातचीत हुई थी उन्होंने। तो उन्होंने मतलब बहुत मुश्किल चीज़ें बड़ी सिंपल वे में बताई हैं कि कोई कुछ नहीं फालतू नहीं सोचना है, बस जहाँ बॉल आ रही है उस तरफ मारना है। वो चीज़ें वो क्रिकेट के में लैंग्वेज में चीज़ें बताई थी। तो एक चीज़ और पूछनी थी मुझे अबाउट पंजाब किंग्स नाउ। ओके, आपकी बॉन्डिंग देखते जैसे जब्स नाम है ना, वो काफ़ी कूल नेचर रहता है आपका, अर्शदीप सिंह का, जब गेल थे तब, अभी तो शिखर धवन पाजी भी आ गया आपके साथ, कप्तान साहब है ना। तो वो बॉन्डिंग किस तरह की रहती है टीम में? टीम की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। हाँ, ये होता है कि
ऑफ फील्ड ऑन फील्ड वाली चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और जो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं वो चीज़ें वो मिक्स मैच नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा चुलबुला है, जोक्स करता है, करता है, वो ग्राउंड में वैसा नहीं होगा। वो ग्राउंड का एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज वो अलग होती है बंदे की। तो मतलब कभी ऐसा हुआ कि शिखर भज्जी ने डांट दिया? नहीं, एज अ सीनियर उन्होंने कभी किसी को डांटा नहीं है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि वही मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है, और वो हो सकता है आप अगर खेल रहे हो और वो आप पे प्रेशर है तो आपको वो चीज़ दिखे ना, आपके वो चीज़ स्किप हो जाए, बट जो देख रहा होता है उसको दिख जाता है कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती, तो वो उन्होंने वो चीज़ें समझाते हैं, और एज अ प्लेयर हम उन चीज़ों पे काम करते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे सुलझती जाती हैं। एंड टेल अस अबाउट द इक्वेशन विद रबाड़ा, बिकॉज मुझे नहीं पता उसने आपको कितनी अंग्रेजी सिखाई, बट आई एम श्योर कि आपने उसको बहुत पंजाबी सिखा दी है। मैं अभी रील्स देखता रहता हूँ आपकी, अर्शदीप की, उसको पंजाबी सिखाते रहते हैं आपको। तो वो इक्वेशन कैसी रहती है रबाड़ा के साथ खासकर? रबाड़ा का नेचर बहुत, मतलब जैसे हम लोग फ्रेंड्स में बैठते हैं ना शाम को, कभी वीकेंड पे, कभी कहीं चले गए, तो वो चीज़ है, वो शाम को हमारे रूम में आ जाना है और हमने बातें करनी है इधर उधर की। इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है हमारी, बट हाँ वो भी वो चीज़ वो समझते हैं, तो वो भी उनका, क्योंकि अगर वो नॉर्मल अपने स्लैंग में बोलेंगे तो समझ नहीं आता है, और जिनको आती नहीं है उनको तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो वो भी वो चीज़ें थोड़ा टेम्पो स्लो करके हमसे बातें करते हैं, और फिर हम भी समझाते हैं उन चीज़ों के, और जोक्स बनते हैं, और वो वहाँ का बताते हैं कि हमारी स्कूलिंग कैसी थी, हमने स्कूल में ऐसे किया, अभी बैक होम हम ये करते थे, वो चीज़ें वो हमारी इतनी अच्छी चलती हैं। और सच बात बताता हूँ, क्रिकेट पे कभी बात नहीं होती हमारी, क्योंकि उस समय IPL के टाइम तो क्रिकेट ही चल रहा होता है, हर दूसरे दिन मैच होता है, तो हम लोग कहते हैं यार हाँ हम इधर की बातें करते हैं, क्रिकेट की बातें नहीं करनी। ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट रबाड़ा से आप इंग्लिश की बात कर रहे थे, बीच में लास्ट सीजन आई गेस शिखर धवन के साथ साथ सैम करन भी कैप्टन थे, तो सिंस यू सेड कि अंग्रेजी का थोड़ा सा रहता है, और सैम करन तो ब्रिटिश, उनकी अंग्रेजी तो और भी ज्यादा गूढ़ी होती है, तो उसकी कमांड थोड़ी बहुत समझ आ जाती थी खासकर क्राउड के बीच में? होता क्या है कि ना, जब आप ग्राउंड में हो तो 50-60 हज़ार दुनिया बैठी होती है, तो कहते वो उसमें तो आप कैप्टन पे ही नज़र रखनी पड़ती है आपको। कई बार क्या होता है मिस भी हो जाता है, वो कैप्टन हल्का सा वो इधर हो जाता है, तो वो हमारा ध्यान ही नहीं होता, वो मिस भी हो जाता है, पर वो चीज़ों पे फिर वो कैप्टन ने पहले क्लियर की होती हैं जब हर्डल बनता है ना टीम का, कि सबकी आइज़ मेरे पे रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक रन कीमती होता है, हाँ, तो एक रन पे हार जीत हो जाती है, तो वो चीज़ें वो रखनी पड़ती हैं, तो हमारी ध्यान उसी पे रहता है कैप्टन पे, बट वो एक्शन में ऑब्वियसली इतनी आवाज़ में सुनता भी नहीं है कोई, बट वो विकेट कीपर और कैप्टन इन दो पे नज़र होती है, तो वो सेट करके चलता है। हाँ जी। बट अभी तक का आपका बेस्ट क्राउड एक्सपीरियंस किस स्टेडियम में रहा एंड किस टीम के वर्सेस रहा, जहाँ पर लाइक मैच तो अच्छा गया जैसा मर्जी गया, लेकिन जो क्राउड एक्सपीरियंस था वो लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड था? मैं भी अहमदाबाद में जब हम खेले थे, तो ऑब्वियसली अहमदाबाद में एक लाख प्लस क्राउड होता है, बट जब हम लोग खेले थे तब कोविड टाइम था, तब ऑडियंस अलाउड ही नहीं थी, क्राउड अलाउड नहीं था, तो उसके बाद कैलकाटा, मतलब जो क्रिकेट को प्यार कैलकाटा के लोग करते हैं, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, चेन्नई में बहुत हैं, बट वो चेन्नई में सिर्फ चेन्नई के लिए हैं। चेन्नई में आप अगर सारी टीम एंटर होती है उतना हल्ला नहीं होता, जब धोनी की एंट्री होती है वो अकेले में वो अलग है, वही हम लोग भी देखते हैं यार, सारा स्टेडियम, मतलब जब तक स्टांस नहीं ना ले लेते माई भाई, तो तब तक वो उन्होंने चुप नहीं होना है, सीटियां चल रही हैं, चेन्नई को सीटियां मारते चल रही हैं, हल्ला अलग लेवल, मतलब अगर हम आंखें बंद करके बता सकते हैं भी कौन पे बैटिंग पे आ रहा है, वो हल्ले से पता लग जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट IPL आल्सो, मैं जानना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि यार फ्रेंचाइज के जो ओनर्स हैं वो बीच में इंक्लूड कर रहे हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, पंजाब किंग्स के साथ ऐसा होता है या नहीं होता? जब हमारी क्रिकेट की चीज़ें होती हैं, प्लेइंग 11 बनानी है चीज़ें, तो उनमें तो ऑब्वियसली कोच और कैप्टन, ये इनका सबसे बड़ा रोल होता है। हाँ जी, तो ये चीज़ सिलेक्शन में हो सकता है, हाँ जी होता हो, है ना, ऑक्शन में होता हो, क्योंकि देखो जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो चीज़ें वो देखेंगे ही, हाँ, बट प्लेइंग में कैप्टन और कोच का होता है सबसे बड़ा रोल।
लेकिन मैं जानना चाहता हूँ पंजाब किंग्स लाइक काफी टाइम से बीच में तो अच्छा खेल, लाइक शुरू में ऑलमोस्ट अच्छा खेल रही होती है ना, वो एंड में आते आते ऐसा क्या हो जाता है कि वो बीच में आ जाते हैं, लाइक फोर्थ से सीधा नीचे। ये चीज़, ये मैं एज अ हार्डकोर फैन, ये चीज़ें हैं कि हम लोगों में हम पिछले 2-3 साल से यही होता है कि लास्ट के 2 मैच अगर जीत जाते तो क्वालिफाई हो जाते, ये चीज़ें चल रही हैं। बट ये है कि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं कि हो सकता है हमसे कोई गलती हो रही हो कि जिस पे हम लोग अभी उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हो, है ना, तो वो चीज़ें चलती हैं। बट ये है कि हार जीत ऐसा, उस प्रेशर में, जो प्रेशर है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो प्रेशर में पता नहीं चलता है आदमी को। हाँ जी, तो बट हाँ अभी लड़के बहुत यंग भी हैं लड़के हैं, और हाँ एक्सपीरियंस आ रहा है। बट जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं टीम अच्छा करती आ रही है। हम अब वही है कि वो जो 1-2 रन वाले मार्जिन वाले मैच हैं वो हो जाता है, वो अप्स एंड डाउन, पता नहीं चलता है कि कौन जैसे हम एक चेन्नई के साथ मैच था तो वो हम जीते भी थे, लास्ट बॉल 3 रन चाहिए थे, तो वो मैच जीते भी थे। और कुछ ऐसे मैच थे कि हम लोग जीत रहे हैं वो, बट वो प्रेशर में ऐसी प्रेशर बना कि हम लोग वो चीज़ का मैच जीत नहीं पाए। वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो सीख रहे हैं लड़के उससे, और हम लोग भी सीख रहे हैं। और इवन जो कोचेज़ हैं, स्टाफ है, वो तो वो चीज़ें वो देख ही रहा होता है, क्योंकि उन पे प्रेशर नहीं होता, वो बाहर बैठे होते हैं, प्लेयरों पे प्रेशर होता है, वो काम चल रहा है। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि इस साल हम लोग क्वालिफाई भी होंगे और टाइटल भी जीतेंगे।